पॉजिटिविटी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वर्ड्स लाइक don't, shouldn't, can't, etc. These words should not be used. Please avoid using negative statements. And before we ended the session, I used one more point, and that was use simple words from using stuffy words. I'm very sorry, but क्योंकि आपने कोई खास doubts नहीं पूछे थे, इसलिए ये points cover हो चुके हैं. And now we will start from the next point. But before I come to the next point, एक डाउट जो आपने नहीं पूछा, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि आपको पूछना चाहिए था, कि किसी ने ये तो पूछा नहीं सर, एडिटिंग का मतलब सिर्फ क्या कट पेस्ट करना है? एडिटिंग का मतलब क्या शब्दों को घटाना है? बिल्कुल नहीं. लोग समझते हैं एडिटिंग का मतलब है दैट यू नीड टू रिड्यूस द ड्राफ्ट, कट डाउन ऑन वर्ड्स. नहीं, एडिटिंग डज नॉट ऑलवेज मीन्स कटिंग डाउन ऑन थिंग्स. एक ही बात बोलते रहते हैं, एक ही बात बोलते रहते, दिमाग खराब कर दिया. नहीं, एक ही बात बोल के दिमाग खराब कर दिया. आई एम वेरी सॉरी, बट मैं तो पहले 5 मिनट का रिकैप कर रहा हूँ. आई एम रिकैपिंग थिंग. मैंने अगर आपका दिमाग खराब कर दिया, देन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. आई डोंट इंटेंड टू यूज सच वर्ड्स अगेन एंड अगेन. आई विल कम डायरेक्टली टू पॉइंट नंबर 7. पॉइंट नंबर 7 इज रिमूव रिडंडेंसीज. रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी मीन्स व्हेन यू यूज वर्ड व्हिच हैज absolutely no significance yet you use it. I have brought a brand Sir, new. what is that word? What is that word? Redundancies. Redundant. REDUNDANCY. Redundancies से redundant से बढ़ाता है redundancies. Redundant का मतलब होता है the words that you use which are meaningless. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. I have brought a brand new watch. अरे, I have brought a new watch. ब्रांड वर्ड का इस्तेमाल ना भी करूं तो फर्क नहीं पड़ता. My basic necessities are to eat and earn money. अब मैं इसकी जगह बेसिक वर्ड का इस्तेमाल ना भी करूं तो फर्क तो पड़ेगा नहीं. My basic necessity में बेसिक वर्ड का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है. I have advanced planning for tomorrow. यार, एडवांस प्लानिंग फॉर टुमारो कोई बुरा वर्ड नहीं है, पर आई हैव प्लान्स फॉर टुमारो. ये कल तो किसी ने नहीं देखा ना. सो रिमूविंग रिडंडेंसीज का मतलब होता है यू डोंट नीड टू से द एग्जैक्ट एंड सेम थिंग विद टू वर्ड्स. देयर आर बेटर वर्जन्स. ब्रांड न्यू, एडवांस प्लानिंग, बेसिक नेसेसिटीज, द लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स आर एंडलेस. समटाइम्स यू unnecessarily use redundant words. If you say your sentences are straightforward and to the point, they are neither. You don't need both words. Your sentences are straightforward or your sentences are to the point. So, redundant शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना. जिनको बुरा लग रहा है मैं चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, I am not interested in repeating. I am only repeating for your benefit because first 3, 4, 5 minutes people tend to join little late. That is why I am repeating. Okay, point number 8. Reduce prepositions. I'm sure जिन्होंने स्कूल में इंग्लिश पढ़ा होगा, of, into, for, that, shall, ये prepositions होते हैं. Although prepositions are helpful in little words, they make sentences more lengthy because they cannot stand alone. Preposition needs lot of friends. By cutting the prepositions and the words that follow, you can cut 3, 4 or even 5 words. जिससे मैं कहता हूँ, the car of your neighbor is good. इसको मैं बोल सकता हूँ your neighbor's car is good. The car of your neighbor is good. 7 शब्दों का इस्तेमाल किया. Your neighbor's apostrophe s car is good. 2 शब्द मैंने काट दिए. So preposition की जगह apostrophes का इस्तेमाल करना, that is another point which goes into editing. The word that word एक बड़ा interesting word है editing में, क्योंकि most of the time that can be get rid of. 95% of the time that का इस्तेमाल करने का फायदा ही नहीं है. एक मुझे स्टूडेंट कहता है 2 मिनट पहले, I decided that journalism is a good career for me. मैंने बोला भैया अगर that शब्द का इस्तेमाल नहीं करता तो भी मतलब यही होता. अगर तू कहता I decided journalism is a good career for me, उसका मतलब भी यही होता. अगर तू कहता I want to do journalism, वो भी इसका भी मतलब यही होता.
that word is something which 95% of the times you can easily get rid of. एक शब्द के ऊपर एक स्लाइड, सर ये तो कोई ढंग की बात आपने नहीं की, आप ये कह सकते हो, पर क्योंकि ये शब्द ऐसा है, दैट शब्द का इस्तेमाल इन एडिटिंग 95% of the time the word that can be eliminated. Once again, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, 7th या 6 पॉइंट्स मैंने फर्स्ट सेशन में कराए थे, 7 पॉइंट्स दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ. रिमूव रिडंडेंसीज. रिडंडेंसीज का मतलब होता है वह शब्द जहां पर दो की जगह एक वर्ड ही काफी होता है. यू डोंट नीड टू से द एग्जैक्ट सेम थिंग विद 2 वर्ड्स. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एडवांस प्लानिंग की जगह प्लानिंग बोलोगे तो भी चलेगा. माय बेसिक नेसेसिटी इज फूड की जगह अगर आप बोलोगे माय नेसेसिटी इज फूड तो भी चलेगा, बेसिक वर्ड काट सकते हो. आई बॉट अ ब्रांड न्यू वॉच की जगह आई बॉट अ न्यू वॉच वो भी चलेगा. तो कई बारी दो की जगह एक शब्दों का इस्तेमाल होता है. दैट वाज पॉइंट नंबर 7. पॉइंट नंबर 8, रिड्यूस प्रपोजिशंस ऑफ, इन, टू, फॉर एटसेट्रा, इनको कट कीजिए. पर उसके बाद अभी जो मैंने पॉइंट बोला है, और वो है सिर्फ एक शब्द का पॉइंट, एंड द वर्ड इज दैट. दैट इज वन सर्टन वर्ड which is 95% of the times redundant. I decided that journalism is a good career for me. इसकी जगह आप ये बोल सकते हो, I decided journalism is a good career for me. सेम लाइन है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दैट शब्द को मैंने यूज कर दिया. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है नेक्स्ट स्लाइड, जिसको थोड़ा सा टेक्निकल है और उसको ध्यान से समझिए. वो कहते हैं आई लाइक यू, आई लव यू. चलो इन दोनों में तो फर्क होता है, ये तो मैं मानता हूँ. इसके ऊपर तो एक 70 पिक्चर का गाना भी बना था. पर वो क्या कहते हैं, certain words in which you use very and really, they may not be that much relevant when it comes to editing. Next slide की heading है, try really hard to spot instances of very and really. very को inverted commas में लिखा है and really को inverted commas लिखा है. It is difficult for me to remember, it is very difficult for me to remember. दोनों का मतलब तकरीबन सेम है, पर जब आप पहली बारी बोलते हो तो उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, दूसरी बारी आप बोलते हो तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी. I almost never get it right until I go back through my copy and the word jumps out at me, and then I change the sentence to this is difficult one for me to remember, because really how much is very helping you, it doesn't get the point across. जब वो कहते हो ना, I'm very 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 much confident that I can do it, this can go even negatively or against you. It can show not only overconfidence, it can even show immaturity. I'm very confident, this can show arrogance. If you say I'm confident, this shows real confidence. समझो, पॉइंट को समझो. हिंदी भाषा में, मातृभाषा बोल रहा हूँ, वेरी शब्द एक दो धारी तलवार की तरह है. इट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. इस शब्द को बहुत स्पेरिंगली यूज करें. उसी तरह एक और दो धारी शब्द है रियली. It's not really difficult for me to do. Yeah, it is not difficult for me to do. It doesn't make the task sound more difficult. Same thing is with really. It's not a really difficult tip to remember. It's really a difficult tip to remember. So basically, ये जो word होता है really और very, these are dangerous words. These are words which needs to be used sparingly and thoughtfully. किसी भी वाक्य के अंदर very और really का इस्तेमाल करने से पूरे वाक्य का कई बारी मतलब, confidence और sometimes even the humility of that particular sentence can change. ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. I am in trouble. समझो, 3 लाइंस बोल रहा हूं और तीनों में फर्क देखना. I am in trouble, इसका मतलब है मैं परेशानी में हूं. I am in much trouble, मैं परेशानी में हूं. I am very much in real trouble. क्या मतलब क्या है तीनों का, चारों का? नहीं, I am very much in real trouble का मतलब ये नहीं है कि मैं सचमुच बड़ी परेशानी में हूं.
इसका मतलब कुछ और बदल गया। जब मैं कहता हूँ आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ, और लास्ट में जब मैंने चौथी लाइन में बोला आई एम वेरी मच इन रियल ट्रबल, इसका मतलब भाई गला कटने वाला है, सब कुछ तेरे हाथ में है, मुझे बचा ले, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे दर पे आया हूँ एकदम झोली फैला के, अगर तूने मुझे खाली किया तो मेरी लाश है। आई एम वेरी मच इन रियल ट्रबल का मतलब है आई एम हियर virtually on my knees to beg you to get me out. But अगर मैं बोलूं यार I am in trouble, I'll pay your money next week, इसका मतलब ठीक है यार, तो पैसा दे सकता है। I am very much in real trouble, मतलब भाई पैसे तो देना दूर की बात, हो सके तो मुझे अपनी जेब से रोटी खिला। Once again स्टूडेंट्स, ये टेक्निकल स्लाइड है। एडिटिंग के अंदर वेरी एंड रियली, ये दो वर्ड्स दे वर्क एज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। अगर किसी को लग रहा है मैं 2-3 बारी रिपीट कर रहा हूँ, उससे मैं माफी चाहता हूँ, पर क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा टॉपिक है इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ेगा। खैर, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वर्ड, करंटली। अभी मैंने आपको बोला था एक वर्ड है दैट, दैट का इस्तेमाल करना 95% आप उसको मिक्स कर सकते हो। उसी तरह there is this important word called currently. The next slide says avoid currently. Nowadays the word currently is एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। अनुज गर्ग is currently a communication director with Ayan. इसकी जगह मैं ये बोल सकता हूँ अनुज गर्ग is the communication director at Ayan. Currently बोलने का क्या मतलब है? I'm eating my food. I'm currently eating my food. Currently का कोई फायदा नहीं है। I am right now addressing my students on a Skype message. I'm currently addressing my students on a Skype message. So कहता है you don't need currently at times to clarify. Slide की last line कहती है get rid of the word currently. तो once again students, जल्दी से आज के अभी तक के लर्निंग्स, पहले 6 स्लाइड्स तो मैंने पढ़ा चुका हूँ। पहली स्लाइड जो आज की कराई है, रिमूव रिडंडेंसीज। रिडंडेंसी मींस जहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल होता है वहां पर एक का करो। डोंट से ब्रांड न्यू, से न्यू। डोंट से बेसिक नेसेसिटी, से नेसेसिटीज। नेक्स्ट स्लाइड कहता है रिड्यूस प्रपोजिशंस। उसका नेक्स्ट स्लाइड कहता है निक्स दैट, यानी कि दैट को छोड़ो। उसका नेक्स्ट स्लाइड कहता है वेरी एंड रियली समटाइम्स चेंज द नेचर, texture and even meaning of the sentence. तो very and really word का सोच के इस्तेमाल करो। इस बात को मैंने 2 बारी रिपीट कर चुका हूँ, पर मैंने एग्जांपल भी दिया कि जब मैंने बोला I am very much in trouble, but I am very much really in too much trouble, कुछ इस टाइप से बोलूंगा तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट अभी जो बोला है वो ये है avoid the word currently. Now comes the next slide. देखो स्टूडेंट्स, अब समझो इसको। लेजी, आप सबको पता है, सबको पता है इसका मतलब कामचोर। देयर इज अ वर्ड इन एडिटिंग नोन एज लेजी राइटिंग। अब जैसे मैं बोलूं वेल स्टूडेंट्स द टॉपिक ऑफ टुडे इज, आप बोलोगे यार क्यों भाव खा रहा है, जल्दी से बात करना, एक तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ऊपर से इतना रुक रुक के बोल रहा है। तो जब मैं बोलूं वेल एक्चुअली दीज आर लेजीज वे ऑफ टॉकिंग, इसका वो दिखाता है कि बंदा सोच रहा है, वो पढ़ा कम रहा है, वो कुछ बोलने का प्रयत्न कर रहा है। उसी तरह लेजी राइटिंग की देयर आर 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसको हम एडिटिंग में कट आउट कर सकते हैं, और वो वर्ड है देयर इज एंड देयर आर। समझो, पहले मैं स्लाइड पढ़ूंगा और फिर आपको बहुत ही सिंपल हिंदी में समझाने का प्रयत्न करूंगा। This is often a symptom of lazy writing. There are lots of better and more interesting ways to start sentences. See how easy it is to make this mistake. Instead of starting a sentence with there is, try turning the phrase around to include a verb to start the sentence. For example, replace the sentence above with start your sentence in a more interesting way. If your copy includes a lot of phrases that begin with there is and there are, put some time into rewriting more of them. There is a common perception that tomorrow COVID-19 cases will exceed 5 lakhs. आप लोग समझ गए मैंने क्या बोला है? But there is का इस्तेमाल मैंने किया. There are a lot of symptoms of people showing
सो ये कहते हैं ना, देयर इज एंड देयर आर, इन शब्दों को लोग लेजी राइटिंग स्किल्स के अंदर लाते हैं। इन दोनों का इस्तेमाल हो सके तो कम किया कीजिए। थोड़ा सा जरा फ्लेवर बदलना चाहूंगा। दिल लगाओ तो लगाओ दिल से दिल, दिल लगी ही दिल लगी अच्छी नहीं। ये शेर इस पॉइंट के ऊपर बहुत खूब बैठता है। देयर इज एंड देयर आर क्या करते हैं, ये थोड़े सवाल को ना राउंड अबाउट वर्जन देते हैं। आप कल को मेरे से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के शॉपिंग मॉल में मिलेंगी, वेल देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई मे कम। ये देयर इज तरह वो जिसे कहते हैं ना, शब्द में पैनापन नहीं है, शब्द में अकड़ूपन नहीं है, शब्द के अंदर वो तीखा मिजाज नहीं है। These are words which are said to be lazy words. मैंने अभी शुरुआत में बोला था ना, like we all say यार चलो snooze का बटन दबा दो, 5 मिनट बाद बोलेंगे। So once again, एक चीज को बार बार ना रिपीट करते हुए, let me repeat this entire thing. Eliminate there is and there are at the beginning of the sentences. These are certain impressions of lazy writing. बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अब इसको ध्यान से समझो। कॉन्ट्रैक्शन, यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? समथिंग विच इज मोर प्लॉजिबल, थोड़ा सा पर्सनल टच है। हाउ आर यू सर, ये क्या बोला आपने, आप कैसे हो ये पूछा, और मैं ये भी कह सकता हूं हाउ आर यू टुडे। सर ये हाउ आर यू टुडे और हाउ आर यू दोनों में फर्क क्या है? दूसरा सेंटेंस लंबा है पर उसमें मैंने कॉन्ट्रैक्शन का यूज किया। मेरे घर में एक गेस्ट आया, मैंने उससे पूछा क्या पिएंगे, व्हाट विल यू ड्रिंक, या मैंने उससे पूछा कॉफी, चाय या कोल्ड ड्रिंक। सर दोनों में फर्क क्या है? पहले में मैं उससे पूछ रहा हूं भाई साहब आप क्या पियोगे, और दूसरे में मैं कह रहा हूं भाई साहब कुछ पिए बिना आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको या तो कॉफी या तो चाय या तो कोल्ड ड्रिंक पीनी। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्शन? अ कॉन्ट्रैक्शन मीन्स शब्द के भाव को बढ़ाना, शब्द के सोच को बढ़ाना, शब्द की अहमियत को बढ़ाना। समथिंग विच साउंड्स मोर पर्सनेबल। यू नो कॉल सेंटर ट्रेनिंग में एक टाइम पर आई वाज अ कॉल सेंटर trainer in which we were training people in American and British accent. So call center training में हम लोग कहते थे, फोन उठाते ही पहला डायलॉग होता है हाउ मे आई हेल्प यू टुडे। हाउ मे आई हेल्प यू टुडे नहीं, ये तो 6 शब्द है। हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, मे आई हेल्प यू टुडे एक ही शब्द है, मतलब उसको हम कट शॉर्ट करके जैसे कि जल्दी से वो जवाब दे सके। कैसे मैं आज आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कोई बुराई नहीं। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? कॉन्ट्रैक्शन। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं आज? बेटर कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा? इट विल मेक योर राइटिंग साउंड फेमिलियर, इट विल शो रियलिज्म इन योर टॉक, and that it will make you easy to connect with people. Contractions can also make you pose easier to read and comprehend, so you get out of the way and stand apart from others. Once again स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टेढ़ा पॉइंट है, फिर भी 1 मिनट घड़ी से देख के और लूंगा। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है वो चेरी जो पेस्ट्री के ऊपर होगी, क्योंकि पेस्ट्री तो पेस्ट्री है, पर जब तक उसके ऊपर चेरी नहीं आएगी पेस्ट्री की अहमियत आपके सामने नहीं आएगी। कॉन्ट्रैक्शन वो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ब्राउन चॉकलेट सॉस की तरह है, जो ट्रिपल फज के ऊपर चॉकलेट सॉस तो पड़ी आती है, पर जब हम कहते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा सॉस डाल दो, उससे एक्स्ट्रा ब्राउन और एक्स्ट्रा चॉकलेटी फ्लेवर आता है। A contraction is something that makes your writing sounds friendlier, it makes you real, it gives value to you. मैंने अभी आपको कुछ बोला और मैंने एक स्टूडेंट से बोला बच्चों समझ आया? एक ने बच्चे ने बोला यस सर, दूसरे बच्चे ने बोला श्योर सर, और तीसरे बच्चे ने बोला सर्टेनली सर, दैट्स अ कॉन्ट्रैक्शन। चौथे बच्चे ने बोला
100% सर, दैट्स अ कंट्रैक्शन। मैं एक बैंक में जाता हूँ, कहता हूँ मुझको 2000 रुपए की पेमेंट चाहिए, कितनी देर लगेगी? द क्लर्क सेज 10 मिनट्स। दूसरे बैंक में जाता हूँ, कहता हूँ मुझे पेमेंट चाहिए, कितनी देर लगेगी? द क्लर्क सेज यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। और मैं तीसरे में जाता हूँ और कहता हूँ मुझे पेमेंट चाहिए, और वो पता है क्या कहता है? वो कहता है इन अ मोमेंट सर, आई जस्ट गिविंग यू द पेमेंट। उसका ये बोलने से ही मेरे कानों को सुकून मिल गया। अब वो 15 मिनट चाहे लेट पेमेंट दे, पर उसने मुझे जब ये बोला सर आई एम ब्रिंगिंग योर पेमेंट इन अ मोमेंट सर, जस्ट होल्ड ऑन, बस उसका ये बोलना ही एक कॉन्ट्रैक्शन है। सर ये तो झूठ है, ये तो मक्कारी है, ये तो बेईमानी है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट। What am I trying to say? In writing you can use contractions. I think I've taken a lot of time on this point. I am now running a little short of the last 2 or 3 slides which are there. Let me now come to the next point, और उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगा. Okay. Check your commas with that and which. When using as a deceptor, the word which takes a comma and the word that doesn't. ये एक बहुत ही spell check, I don't know जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल किया है, या आजकल तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि ऑटोमेटिकली आपके कॉमा, फुल स्टॉप और छोटे मोटे स्पेलिंग्स को ठीक कर देता है, पर क्योंकि ये एक स्लाइड शो का एक एसेंशियल पार्ट है. फॉर एग्जांपल, वी वेंट टू द हाउस दैट कोलैप्स्ड यस्टरडे, और वी वेंट टू द हाउस कॉमा व्हिच कोलैप्स्ड यस्टरडे. सो दैट और व्हिच के अंदर कई बारी अपने कॉमास को आपको चेक करना है. दीज वर्ड्स कैन आल्सो बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. And now coming to the last slide, and that is very important. जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, ये लास्ट स्लाइड कुछ नहीं बट उसका सिनॉप्सिस है. वो ये कहता है आइडेंटिफाई योर टेल्स. स्टूडेंट्स, जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, और वो क्या है? everything 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 a teacher can teach you, but one thing which a teacher can't teach you is your own style statement, your own way. मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे थोड़ा बहुत फैशन में इंटरेस्ट रखते हैं, पर इस वर्ल्ड के अंदर हर फैशन डिजाइनर का एक क्रिएटिव स्टाइल है. एक एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग, एक रजा की पेंटिंग, एक अंजलॉय इलामिनन की पेंटिंग, एक सैल्वाडोर डाली की पेंटिंग, एक जतिन दास की पेंटिंग, लोग दूर से आइडेंटिफाई कर देते हैं क्योंकि उनका एक पेंटिंग का स्टाइल. बनाया सभी ने घोड़ा है, बनाया पांचों ने ही एक क्या कहते हैं रिवर का सीन है, पर हर एक का एक अपना स्टाइल स्टेटमेंट है. So when you say identify your tells, I'm reading the last slide. It says, no matter how good a writer you are, when you sit down to write the first draft, you have the tendency to spit out sentences in a certain way or use certain words. The more familiar you become with editing your own copy, the more quickly you should be able to pick up on your tells, and the more ruthless you can be to eliminate them from your writing. But at the same time, do not lose your individuality. Do not use your individual style state. वो जैसे कहते हैं कि हर शायर की शायरी के अंदर जितना मर्जी दर्द, प्रेम एक्सेट्रा हो, पर हर शायर का शायर बोलने, शेर बोलने का अंदाज अलग होता है, और यही अंदाज उसका पहचान बन जाता है. मुझे नहीं पता आप में से कितने आजकल रेडियो ज्यादा सुनते हैं, पर वो एक चैनल पे रेडियो के वो जावेद अख्तर और उसके बेटे का स्पूफ आता है कि जावेद अख्तर के बोलने का स्टाइल कैसा है और किस तरीके से वो अपना बात की शुरुआत करता है और कैसे वो शायरी के अंदर पॉज करता है. सो आइडेंटिफाई योर टेल्स का मतलब आप अपने ड्राफ्ट को, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को किसी से भी एडिट करा लें, प्रोफेशनल से उसको ठीक करवा लें, पर एक जो आपका इंडिविजुअल स्टाइल स्टेटमेंट वो नहीं जाना चाहिए. जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि it is not the ingredients or the vegetables which makes the best dish, but it is how the chef cooks it. So the chef का, हर एक शेफ का कुकिंग स्टाइल है.
इसलिए हर घर के अंदर सेम सब्जी अलग अलग टेस्ट आती है। और आज भी आप बाजार में जाएं तो कई जगहों पर आपको सेम डिश मिलेगी, पर लोग कहते हैं कि नहीं, उस दुकान के छोले भटूरे और उस दुकान की कचौरी या उस दुकान की भेलपूरी या उस दुकान का चिकन मसाला बहुत स्वादिष्ट है। तो दैट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग योर टेल्स। स्टूडेंट्स, आखिरी 3 मिनट बचे हैं मेरे बोलने के। प्लीज बिफोर यू आस्क क्वेश्चंस, आई एम वंस अगेन कमिंग बैक टू द एंटायर स्लाइड शो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जिसके अंदर मैं पहले 6 पॉइंट्स तो सिर्फ बोलूंगा और आज के पॉइंट्स को जल्दी जल्दी से रिपीट करूंगा। वंस अगेन, जिन्होंने आज पहली बारी मुझे ज्वाइन किया है, the rule is join me on time, respect your time. Rule number 2, keep a pen in hand so that you can ask questions. Rule number 3, slideshows are available with Ian, you can take it from them. Rule number 4, and very importantly, I would be very happy to, if you can tolerate me, क्योंकि मुझे कुछ चीजें रिपीट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो आज का टॉपिक है एडिटिंग फॉर बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। एडिटिंग का मतलब क्या होता है? एडिटिंग का मतलब किसी चीज को कट शॉर्ट नहीं करना। एडिटिंग का मतलब किसी चीज के अंदर इंप्रूवमेंट करना है, but at the same time, editing is all about when you are making your write-up more presentable, more readable, ironing out the deficiencies, and at the same time giving the readers value for time and money. So editing के principles के अंदर पहला principle है cutting long sentence into two, ये explain कर दिया गया है। Principle 2, acts the adverb. Principle 3, stick to one voice, that is active or passive. Principle number 4, remove extra punctuation. Principle number 5, remove negative with positive. Principle number 6, replace stuffy words with simple ones. ये पहले सेशन में हो गया था। अब जो आज हुआ है उसको जल्दी से एक एक स्लाइड को 10-10, 15-15 सेकंड में करूंगा। आज की पहली स्लाइड हुई थी रिमूव रिडंडेंसीज। रिडंडेंसी का मतलब है जहां पर दो शब्दों का इस्तेमाल जबरदस्ती हो रहा है, वहां पर एक शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा पॉइंट हुआ रिड्यूस प्रपोजिशन, ऑफ, इनटू, फॉर, इनको कट शॉर्ट किया जा सकता है। फिर मैंने एक स्लाइड सिर्फ एक शब्द पर दी, वो था मिक्स द वर्ड दैट। मिक्स का मतलब कट आउट। दैट आज की डेट के अंदर इररिलेवेंट। I decided that journalism is a good career for me. I decided journalism is a good career for me. That का कोई फालतू का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो शब्द है वेरी एंड रियली, ये डेंजरस शब्द है, इनको स्पेयरिंगली यूज करना है। क्योंकि जब आप कहते हैं ना आई लाइक यू वेरी मच, आई रियली लाइक यू वेरी मच, तो दोनों में अर्थ बदल जाता है, दोनों का मीनिंग बदल जाता है। तो वेरी एंड रियली, इसको सोच समझ के इस्तेमाल करना है। उसी तरह मैंने बोला एक और वर्ड है जो आज की डेट के अंदर रिडंडेंट किया जा सकता है, करंटली। जैसे मैंने बोला था श्री अनुज गर्ग जी इज द डायरेक्टर करंटली ऑफ यान, या अनुज गर्ग इज द डायरेक्टर ऑफ यान। करंटली का कोई इस्तेमाल नहीं करता। फिर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड का इस्तेमाल आज किया है और वो है लेजी राइटिंग। लेजी राइटिंग, जैसे हम कहते हैं ना देयर इज एंड देयर आर, इन शब्दों को हम कहते हैं लेजी राइटिंग। ये शब्दों को पावरफुल शब्दों का में नहीं माना जाता। सर क्या मैं इसका उपयोग नहीं करूं? मैंने ऐसा तो नहीं बोला। मैंने आपको एक रूल बताया और वो रूल है ऑफ एडिटिंग जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। सो देयर इज एंड देयर आर को आप बहुत सोच समझकर स्पेयरिंगली वेटेज देकर इस्तेमाल करें। फिर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया, रिड्यूस कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? मैंने एग्जांपल दिया था, कॉन्ट्रैक्शन है जो एक चेरी ऑन द पेस्ट्री होता है, जो फ्रूट केक के ऊपर जब तक चाहे नकली ही क्यों ना हो, डाला हो तो वो टेस्ट नहीं आता। उसके बाद आई यूज द वर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, हेलो सर एक्सक्यूज मी। यस मैम। कॉन्ट्रैक्शन को यूज करना है या फिर रिड्यूस करना है? बेटे कॉन्ट्रैक्शन तो अभी आप कितनी कॉमन सी बात है, आप खुद बताओ। पेस्ट्री के ऊपर चेरी रखनी है, वो पेस्ट्री के लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा ही है ना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है the words which make your writing friendlier, they make you sound real and you can easily connect with readers. अब मैं कहता हूँ, अभी मैं आपको तरफ देखता हूँ एंड मैं कहता हूँ योर टी शर्ट ऑफ पिंक कलर इज वेरी नाइस। अब आपका जवाब होगा थैंक यू सर। पर आप एक कॉन्ट्रैक्शन का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप थैंक यू की जगह कुछ बेटर भी तो बोल सकते हैं मुझे खुश करने के लिए। आप कह सकते हैं सर you are really very appreciative, your sense of color is great,
मतलब जिसे कहते हैं ना, चाहे चने की झाड़ पर ही आप मुझे चढ़ा रहे हो, पर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है when you use words like surely, certainly, it's done, 100%, great. अब एक लड़की जाती है और वो ट्राई रूम में कपड़ा ट्राई करके आती है। अब तो खैर ट्राई रूम बंद हो गए शॉपिंग मॉल में, तो हम शॉपिंग के मॉल के स्टाफ को हम ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं? हाउ एम आई लुकिंग? एम आई लुकिंग फैट? नॉट एट ऑल मैम, यू आर लुकिंग ग्रेट। क्योंकि ये उसकी थिंकिंग है। अगर उसको लग रहा है उस ड्रेस में ग्रेट लग रही है, तो मैं क्यों बोलूं भाई मोटल्लो अपने वेट कम कर, इस ड्रेस में मोटी लग रही है। सो कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स which words which sound familiar, they make you a real person, and very importantly it makes you connect with the readers. And then the last point which I did was identify your tells. Tells का मतलब is एक ड्राफ्ट को आप 2 नहीं 20 नहीं 200 लोगों से चाहे आप उसको पढ़वा लो, दिखवा लो, जो मर्जी करवा लो, बट अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट को आप इंटैक्ट रखिए, अपना एक तरीका, अपनी एक वे को आप स्टार्ट रखिए। एक्सक्यूज मी, ये चल रहा है, ये क्या ऑफ हो गया? यहाँ से कनेक्शन ब्रोकन आ रहा है, ये देखना, ये चल रहा है अपना इंटरनेट। Am I audible to you, students? आ रही है सर, आवाज आ रही है। Yes, sir. Sorry. There is a very big storm going on. यहाँ पर क्या कहते हैं, कोई बारिश सी आ गई है। So students, with this I end my session today. We have got exactly 6 more minutes as per my watch. If anybody has to ask any questions, ask me. नहीं तो मैं आपको कुछ और किसी भी पॉइंट को elaborate करना हो तो मैं कर सकता हूँ। कोई महान स्टूडेंट जिसने अपनी उंगलियों को तकलीफ दी हो और सारे पॉइंट्स लिखे हो, ऐसा भी है कोई यस सर बोलने वाला? कोई भी महान नहीं है, मतलब सबको पकी पकाई खीर चाहिए, सबको साइड पर सही करना है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। अगर आपने लिखा है तो आप में से किसी को किसी भी पॉइंट के ऊपर, कुछ एडिटिंग के ऊपर कुछ भी प्रीपोजिशंस वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। बेटे बहुत ही मतलब क्या बोलूं, उसे समझाने में भी मुझे शर्म सी आती है, क्योंकि तो मैंने लिखा नहीं, मतलब ऑफ इन फॉर मिस हो गया था। प्रपोजिशंस का इस्तेमाल जैसे कहते हैं, जैसे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जब स्कूल में होते हैं ना, उनको पढ़ाया जाता है, बेटे प्रपोजिशन से लिखो, बेटे रेन एंड मॉर्टन से लिखो। जब आप एक जर्नलिस्टिक राइटिंग लिखते हैं तो आपको कटिंग एज से लिखना है, आपकी थॉट को कट होना चाहिए। वो कहता है by cutting the prepositions and the words that allow, you can cut 3, 4 or even 5 words. जैसे मैंने बोला, the car of your neighbor is really very nice, तो मैं 9 शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर मैं भी कहता हूँ your neighbor's car is nice, neighbor apostrophe s डालकर car is very nice, तो is, of, but, for, shall, to, ये सब स्कूल के 8वीं 10वीं 12वीं क्लास के बच्चों के काम आते हैं। इन एडिटिंग आपको अपने थॉट को आगे करने के लिए prepositions को रिड्यूस करना। Still, thank you for asking this. Anyone else would like to ask? Any point anybody would like to ask? अगर किसी को कुछ नहीं करना, तो मैं कबीर सिंह पिक्चर की बात करना चाहता हूँ। इंटरेस्टेड है या नहीं? ना आपको पढ़ना है, ना पे कबीर सिंह पिक्चर की बात करनी है, कुछ तो बोलिए। कबीर सिंह पिक्चर का एक डायलॉग है, आई लाइक द वे यू ब्रीथ। याद आया किसी को? किसी को ये डायलॉग याद आया? आई लाइक द वे यू ब्रीथ, कबीर सिंह फिल्म का। ये किसका एग्जाम्पल है? इन जो मैंने आपको स्किल सिखाई है, ये किस स्किल का एग्जाम्पल बताइए? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रैक्शन। ये एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्शन। मैं तुमसे बेइंतहा ऑब्सेसिव तरीके से प्यार करता हूँ, उसकी जगह उसने बोला आपको मेरे में क्या अच्छा लगता है? मुझे आपका सांस लेना अच्छा लगता है। अब उसने बोला तो यही कि मुझे आपका सांस लेना अच्छा लगता है, बट लुक उसका आइडिया कितना पावरफुल है, उसका डायलॉग कितना पावरफुल है, उसकी सोच कितनी पावरफुल है।
उसी तरह आई डोंट नो, एक एडिटिंग का और बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप सबने ये पिक्चर देखी होगी, सीक्रेट सुपरस्टार, जो कि आमिर खान था, जिसमें सेकंड हाफ में रोल था, जिसके अंदर एक गर्ल और जो कि एक इंटरनेट की सेंसेशन बन जाती है। इस पिक्चर के अंदर एक गाना था, तेरी ही मेरी बोलूंगी। हेलो, am I audible to you? Am I audible to you, students? Yes. Yes, हाँ, मैं sir. आपको एक एग्जांपल Yes, दे रहा था, sir. एडिटिंग का एक और एग्जांपल दे रहा था। There was this movie ये एक बहुत कॉमन चीज आपने सुनी होगी, सीक्वल टू द नॉवल, सीक्वल टू द मूवी। सीक्वल क्या होता है? सीक्वल होता है जिसको हम कहते हैं सेक्रेड गेम्स पार्ट 2 या गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2, मिर्जापुर पार्ट 2, या आजकल जो भी कोई और सीरियल्स वगैरह आ रहे हैं, वेट फॉर द पार्ट 2, द फैमिली मैन पार्ट 2। Editing also is something which gives you sometimes the preclude. It gives you an opportunity to not only subtract or cut words, it also gives you a chance to add upon in the end. So editing में सिर्फ काटना ही नहीं होता, editing के अंदर कई बारी additions भी एक important part होती है। I'm sorry, but in my watch it's 5:40 and at any point we can end. Still, I'll be very grateful if anybody has any doubts. You can have the slides collected from ma'am. They are in the pen drive. I've already given it to ma'am. Iske alawa, still, till the session gets over, you're most welcome. Most, I would say, anybody can ask me anything on any of the 10, 12 points which I have done. In the last class, I had given you a written assignment. I'll be very grateful for those of you who have done. You can आप अपना यान की official mail ID पर डाल सकते हैं. You can also write assignment for so and so topic. You can even mark a reference of my name. It will be forwarded to me and I will go through it. If anybody has anything to ask apart from this, or even anything on current affairs, I'm most welcome.